Bismillahirrahmanirrahim. This is a lecture 8 for the subject of estimation of signals and systems. So in the previous lecture we saw and discussed two techniques for estimation. One was for in the case of a random parameter, and the second one was for the case when you have a non-random parameter. We discussed two approaches. The first one was maximum likelihood. Maximum likelihood technique is used for non-random, for estimating non-random constants or unknown constants. It's a non-Bayesian approach. That means that we don't have the a priori information about the unknown constant. The second technique was regarding a parameter which was a random variable with a known prior. If we know the prior of a random variable, we can use the Bayes formula, and hence the techniques are known as Bayesian techniques. In the Bayesian approach, we discussed the map estimator. So in the map estimator, basically the estimate is the peak of posterior. So today we are going to discuss two other techniques, one for the non-random parameter case and the other one for a random parameter case. So but before that, we are going to discuss another topic. So okay, so in the previous lecture we had covered till this thing, map estimator. We had done it and we did a few examples. Today we are going to continue from ML and map estimators. We are going to look into some topic regarding these, and then today we are going to discuss least square and minimum mean square error. These are two estimators also. Least squares is for the case when your parameter to be estimated is a non-random, and in the case of minimum mean square you estimate a random parameter, that is with a known prior. So we want to know the sufficient statistic and the likelihood equation. So likelihood function of a parameter can be decomposed in the following form. That is, we can have two functions from the likelihood function, two separate functions from the likelihood function, और हम देखेंगे कि कैसे हम सिर्फ इस फंक्शन से using this function which is dependent on the which is a function of the measurements, हम कैसे इससे सिर्फ इसे यूज करके हम अपना estimate compute कर सकते हैं. ठीक है, that means we don't need to use this function or the information of this function. So this function g of z, इसे हम कहेंगे ये है sufficient statistics, यानी it is sufficient statistic, यानी it is enough to estimate the parameter x. So let's consider an example. आपके पास scalar measurements हैं z which are equal to x plus w. X is your parameter to be estimated and w is the noise, the measurement noise, and where we have assumed that w is independent and identically distributed zero mean Gaussian random variable, and it is a variance of sigma square. So mean is zero and sigma square is the variance. So last lecture में भी आपने देखा था हम normally distributed variable को ऐसे denote कर सकते हैं, where this shows कि इसकी PDF normal या Gaussian है, this symbol, और
दिस फर्स्ट थिंग मीन्स जीरो मीन है ये, और ये आपको वेरिएंस शो कर रहा है। सो अगर ऐसा केस है तो देन जो मेजरमेंट्स हैं उनका मीन आपके पास x के इक्वल होगा डेफिनेटली, और वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर यानी नॉइज की जो भी वेरिएंस है वही होगी। ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि आपके पास जो मेजरमेंट है उसका जो मीन होगा वो ये होगा, बिकॉज आपके पास जो मेजरमेंट नॉइज है ये जीरो मीन है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन आपके पास in terms of all the set of measurements क्या चीज बन जाएगी, इट इज गोइंग टू बी दिस थिंग। ठीक है जी, ये चीज आपके पास बन जाएगी। देयर आर मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड अ सिंगल पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। इन सच अ केस the likelihood function is going to be the multiplication of all the PDFs, and it looks something like this। और लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था वो चीज़ कुछ इस तरह की बनती है, like that। So likelihood function को हम in the form of product भी लिख सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आप ये स्क्वायर ओपन करना है, तो पहली टर्म जी जे स्क्वायर आ जाएगी, दूसरी एक्स स्क्वायर, और तीसरी आपके पास -2x जी आ जाएगी। सो अकॉर्डिंगली जब आप इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो यू गेट दीज टर्म्स, these। So now we can divide our likelihood in two functions, where one is where the one that we are going to use is this one। ठीक है जी, ये जो फंक्शन है आपका जी जी, इस फंक्शन वाला। और यहाँ से ऊपर अगर इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि दिस फंक्शन इज दिस एफ ऑफ कैपिटल जी, एंड द रेस्ट ऑफ दिस थिंग ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास ये सेकंड वाली जो आपके पास पीडीएफ है ये आ जाएगी। सो अगर हम सिर्फ राइट साइड यानी ये वाली साइड यूज करें तो ये इनफ है फॉर आवर एस्टिमेशन। देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द सेकंड पार्ट f2 of c। so f2 सॉरी f1 ऑफ जो आपके पास जी जी है ये सफिशिएंट है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ our estimate, and we can write this thing as this one also। gz आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। और then accordingly we know that आपके पास जो estimate होगा that is going to be this thing which is the mean of the measurements, ठीक है, और this thing, और this is the sufficient statistic for estimation of the state x। अच्छा, अब ये चीज यहाँ से कैसे आई, जो पिछली स्लाइड पे आपकी इक्वेशन थी 2.3.5.7 उसका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लें उसके लॉग लाइक्लीहुड का और उसे इक्वेट कर लें टू जीरो। इक्वेशन आपके पास ये थी, इसमें से आपने क्या लिया, आपने ये पार्ट इसका लिया जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, इस पार्ट को लेके आप इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दिस शुड बी दिस इज द डेरिवेटिव with respect to x, derivative with respect to x of log likelihood function। so जब ये चीज और इसे इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल तो then you are going to get this equation which is the solution for this estimator। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी उसने यही बात इस पेज पे बताई है कि you just take the log likelihood, you can do this, और since लॉग जो है वो आपके पास मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इसलिए आप लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स इजी, मोर इजी टू यूज दिस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बिकॉज ये नेचुरल लॉग होगा। पिछली स्लाइड पे इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज लाइक written as maybe log to the base 10, ये नेचुरल लॉग होगा। सो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल की वजह से अगर इसका लॉग ले लें तो ये बड़ा इजी हो जाएगा एवेलुएट करना, एंड यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन दैट सोल्यूशन व्हिच वी हैव ऑन द प्रीवियस पेज। ठीक है जी, जो लाइक्लीहुड आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके पास जो भी उसका एस्टिमेट आ रहा है, सिंपली यू नीड टू डू दिस। ठीक है, और इक्वेट करना उसे जीरो के इक्वल, then your ml will be equal to this thing. So यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ हमने जो sufficient statistic था वो पार्ट यूज किया उस likelihood function का, and we got the correct answer. इसी तरह मैप के केस में भी आप ये काम कर सकते हैं, sufficient statistic आप उसकी निकाल के, और प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने अभी अभी देखा, तो आपके पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप लोग ये चीज़ खुद करके देख लें। अच्छा जी, स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर प्रॉपरली, दो टेक्निक्स हैं, पहली है लीस्ट स्क्वेयर्स और दूसरी है मिनिमम मीन स्क्वेयर एरर। लीस्ट स्क्वेयर टेक्निक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लीस्ट स्क्वेयर हम यूज कर रहे हैं फॉर द नॉन रैंडम पैरामीटर केस, और मिनिमम मीन स्क्वेयर एरर एस्टिमेशन हम यूज करेंगे जब आपके पास प्रायर होगी। ठीक है, यानी बेसियन सोल्यूशन है, या बेसियन अप्रोच है एमएमएसई। सो लीस्ट स्क्वेयर्स एस्टिमेटर क्या चीज़ है? So the least square method is, you know, the measurement and parameter equation that is equal to this thing. ठीक है, इस केस में अज्यूम कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है between this parameter and the state, the parameter and the measurements, it is non-linear. ये फंक्शन h non-linear है, ठीक है, but they are scalar quantities. So जो लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेटर होगा आपके पास, उसकी इक्वेशन आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, यू ट्राई टू मिनिमाइज द स्क्वेयर ऑफ दिस क्वांटिटी, जो ऑब्वियसली काइंड ऑफ आपके पास एरर ही होगा। सो ये आपके पास नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम है। एनएलएसबी कुछ जगहों पे ये डिनोट हुआ होगा। अगर फंक्शन आपका जो h है, जो मैंने अभी बताया कि नॉन लीनियर है इस केस में, अगर वो लीनियर होगा तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे लीनियर लीस्ट स्क्वेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपके पास, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन देखी लीस्ट स्क्वेयर्स का जो एस्टिमेटर देखा, सो जिसमें हम डिफरेंस मिनिमाइज कर रहे हैं जी और नॉन लीनियर जो फंक्शन है एच उसका, उसकी केस में आपके पास हमने नॉइज की कोई अजम्पशन नहीं की थी, बट इफ आपकी नॉइज इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, देन इन दैट केस जीरो मीन एंड विद सर्टेन वेरिएंस, ये आपके पास अगर हम ये अजम्पशन कर लें, तो जो आपके पास लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है ये MLE बन जाएगा। ठीक है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन x का उस केस में आपके पास क्या बनेगा? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी दिस थिंग। ठीक है, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सोल्यूशन देखा। ठीक है जी। सो एक्चुअली जो आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इट इज disguised maximum likelihood approach, nothing more. So अगर आप इस कोर्स में हम यही एजम्पशन करेंगे, जो हमारे पास नॉइज है दैट इज जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल, तो इन दैट केस आपके पास जो लीस्ट स्क्वायर है और जो आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच है, ये सेम रिजल्ट्स देंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर, ये क्या चीज़ है। सो रैंडम पैरामीटर्स के लिए जब आप एस्टिमेटर बनाएंगे, एक हमने कल देखा था मैप, और आज हम देख रहे हैं मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर। इस केस में डेफिनेटली आप क्या कह रहे होते हैं? सो इसके नाम में ये चीज़ जाहिर है, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर। सो मीन स्क्वायर एरर, एरर क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस
between the estimate and the true value, actual value. ठीक है जी. So this is the, ये आ गया आपके पास एरर, स्क्वायर एरर. सो आपने स्क्वायर ले लिया एरर का, मीन आपने एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर यहाँ पे लगा लिया. ठीक है. सो मिनिमम, दैट मीन्स यू ट्राई टू मिनिमाइज दिस एरर. ठीक है, दिस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एक्चुअली. ठीक है जी. और कंडीशनल मीन हमने सेकंड लास्ट लेक्चर या मे बी इट वाज द थर्ड लास्ट, उस लेक्चर में हमने देखा था कंडीशनल मीन आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है. सो एक्चुअली दिस इज द मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर. 2.4.1 डैश कॉमन इक्वेशन से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है. इसी तरह अगर आपके पास, सो हाउ डू यू मिनिमाइज दिस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, वो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं अपने मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन का. ठीक है. और वो चीज़ आपके पास विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम एस्टिमेट ले रहे हैं, सो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी. ठीक है. एंड दिस इक्वेट्स टू दिस थिंग. नाउ अगर इसी तरह आपके पास, ये तो वो केस था, ये वाला वो केस था जब आपके पास स्केलर क्वांटिटीज है. अगर इसी तरह आपके पास जो स्टेट वेक्टर है, स्टेट जो आपके पास है या जो पैरामीटर है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पैरामीटर इट्स अ वेक्टर. ठीक है. अगर ये वेक्टर होगा तो फिर आप ग्रेडियंट ऑपरेटर यूज करेंगे, जो हमने लीनियर अलजेब्रा जब का जो लेक्चर था उसमें जब हमने देखा था, तो वी डिफाइंड दिस ग्रेडियंट ऑपरेटर. ठीक है. इट विल बी अ कॉलम वेक्टर. एंड ये आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि वो क्या है. और देन स्क्वायर, दैट मींस अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो स्क्वायर उसका क्या होगा, ट्रांसपोज इनटू द सेम वेक्टर. सो एरर का ट्रांसपोज इनटू एरर. ठीक है जी. एरर ट्रांसपोज इनटू एरर, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड देन यू टेक द ग्रेडियंट और इसे इक्वेट कर लेते हैं, जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं. सो यू, दिस इज योर मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेट. सो मैप, जिस तरह जैसे आपके पास मैप था, मैप में आपको या इवन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर था. यहाँ पे जो आपके पास एस्टिमेटर है, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर, इसमें आपको कंडीशनल मीन की वैल्यू चाहिए होगी पोस्टीरियर डेंसिटी की. सेकेंडली, जो मैप और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर है एस्टिमेटर, ये सेम, they produce estimates that are function of posterior density for x. ठीक है. in both the cases map and MMSE. लेकिन आपके पास जो मैप एस्टिमेट है वो ट्राई करता है टू फाइंड आउट द पीक ऑफ पोस्टीरियर. जो आपके पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पीडीएफ है, उसकी पीक फाइंड आउट करने की कोशिश करता है मैप. वेयर एज जो MMSE है, ये उस पोस्टीरियर की मीन कंप्यूट हो रहा, मीन उसका कंप्यूट कर रहा है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है मेन मैप और MMSE के दरमियान, कि मैप में आपका जो एस्टिमेट है, इट इज द पीक ऑफ द पोस्टीरियर, whereas in case of MMSE the estimate is the mean of that variable. अच्छा, अब आपके पास एग्जांपल आ रही है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर. फॉर अ सिंगल मेजरमेंट आपके पास अननोन पैरामीटर है x और सिंगल मेजरमेंट है दैट इज z. w is the noise. so least squares criteria आपके पास क्या होगा, least square criteria for this case will be this thing. ठीक है जी. सो z माइनस एक्स, सो h ऑफ x की जगह अब यहाँ पे आपके पास ये लीनियर है. ठीक है. सो लीनियर प्रॉब्लम है, सो आपके पास ये लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स होगा. z और x 1-to-1 मैपिंग है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ h ऑफ x यू आर डायरेक्टली यूजिंग x. ठीक है. सो दिस थिंग गिव्स यू z. अगेन वही मिनिमम इसका फाइंड आउट कैसे करने की कोशिश करेंगे. यू जस्ट टेक द derivative of this thing, this thing,
लीस्ट स्क्वायर के केस में इस चीज का डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा इसका estimate which is the actual measurement, no different than the least than the technique maximum likelihood that we did in the previous lecture. Then अगर आपके पास काफी ज्यादा मेजरमेंट्स हो, इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल मेजरमेंट, अब हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिस केस में आपके पास मेजरमेंट्स काफी हैं, ठीक है, मोर देन वन है, और एस्टिमेट आप कर रहे हैं ये पैरामीटर एक्स। सो इस केस में आपके पास जो लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स का प्रॉब्लम होगा ये कैसे बिल्डअप होगा। अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि नॉइज आपके पास क्या, जीरो मीन गॉसियन नॉइज है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंट है, और वेरिएंस इसकी अगेन सिग्मा स्क्वायर ही है। लाइक्लीहुड फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन इस केस में बन जाएगा, ये जो सामने आपकी इक्वेशन 4 नजर आ रही है यहाँ पे, दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड जो आपके पास इस केस में भी आप देखेंगे जितना पिछली एग्जांपल के केस में था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड और लीस्ट स्क्वायर जो एस्टिमेट है दे आर गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड इज इक्वल टू द लीस्ट स्क्वायर रिजल्ट इन दिस केस व्हिच इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इस केस में भी आप क्या करेंगे, ये आपके पास एमएल का रिजल्ट है, जब आप कंसिडर कर रहे होंगे लीस्ट स्क्वायर्स का रिजल्ट, तो जो आपके पास पिछली इक्वेशन थी दैट इज रदर आप सिंपली यूज करेंगे 2.4.2-2, ठीक है, इस तरह का आपका सेटअप होगा, इस तरह की आपकी चीज होगी, समेशन ऑपरेटर डेफिनेटली बीच में आया होगा, ठीक है, तो उसे डेरिवेट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यू आर गोइंग टू दिस गेट दिस रिजल्ट। वेयर एज अगर आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड यानी इस लाइक्लीहुड को इफ यू ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस थिंग, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट एज दिस वन। सो इन दिस केस टू आपके पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है और जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है ये सेम है। सो ये जो आपके पास एस्टिमेट है इसे हम सैंपल मीन या सैंपल एवरेज भी कहते हैं, और आगे जाके हम देखेंगे कि ये सैंपल मीन एस्टिमेट में डिफरेंट इसके ऊपर चेक्स ये इसका देखेंगे बायस इसमें क्या है, ठीक है, इसकी वेरिएंस क्या एंड सो ऑन। सो दिस स्पेसिफिक estimate is this specific estimate is known as the mean sample mean और sample average estimate, ठीक है जी। और ये हमने देखा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड और लीस्ट स्क्वायर दोनों एक ही चीज का नाम है इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। वो जब हम डेफिनेशन कर रहे थे लीस्ट स्क्वायर्स की, हमने देखा था जब हम डिफाइन कर रहे थे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर को, तो वहां पे जो आपने देखा था कि एट द एंड जब हमने ये अजम्पशन ली थी कि उसमें जो आपके पास नॉइज है वो इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो इन दैट केस हमने ये देखा था कि आपके पास जो एम एल ई है, ठीक है, और जो आपके पास एल एस है लीस्ट स्क्वायर्स, ये दोनों एक्चुअली सेम है। रादर आप कह सकते हैं कि एल एस इज, हमने कहा था कि इट्स डिस्गाइज्ड एमएल अप्रोच, ठीक है जी। सो एक में आपने कहा कि हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपना जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं इन द केस ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दूसरा में आपने कहा जी हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपनी पीडीएफ को। सो बात एक ही है इन बोथ द केसेस, मैक्सिमाइजेशन हो या आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो हम कंपेयर करते हैं एमएमएसई और मैप एस्टिमेटर को। सो आपके पास जो हमने ये सेक्शन किया था, ये चीज़ कवर की थी 2.3.2, ठीक है जी, इसमें शायद मैप में हमने ये चीज़ देखी थी, मैप जब हम एस्टिमेटेड कर रहे थे, दैट दिस वाज द पीडीएफ, द पोस्टीरियर पीडीएफ ऑफ एक्स, आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ थी। सो हमने ये भी देखा था कि इसका जो मीन है दैट इज इक्वल टू दिस जीटा फंक्शन व्हिच इज फंक्शन ऑफ द मेजरमेंट। ये
आपको मैंने कहा था कि थोड़ी सी डेरिवेट करके उसे देख लें कि आई होप आपने डेरिवेट कर लिया होगा। ये जीटा और उसकी जो वेरिएंस हमने निकाली थी, ठीक है। और यही जीटा आपके पास पीक है इस पीडीएफ की। सो इन दिस केस आल्सो आपके पास जो मैप और एमएमएसई हैं दे आर द सेम, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैप में आप जो एस्टिमेट होता है वो एक्चुअली पोस्टीरियर की पीक होती है, ठीक है। और एमएमएसई में वो क्या होता है, मीन होती है उस चीज़ की, मीन होता है एस्टिमेट आपकी पोस्टीरियर का। सो इन दिस केस टू आपके पास मैप एंड एमएमएसई दे कोइंसाइड। सो ये क्यों रहा, ये आपका मीन और मोड अगर आप देखें गॉसियन पीडीएफ की उसकी वजह से है। क्योंकि आपके पास जो गॉसियन पीडीएफ है वो सिमेट्रिक और यूनिमोडल है। यूनिमोडल का क्या मतलब है ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ये यूनिमोडल नहीं होगी तो ये एमएमएसई और मैप लाजमी नहीं है इक्वल हो। सो इन दिस केस क्योंकि वो गॉसियन पीडीएफ है और यूनिमोडल है, ठीक है, दैट गॉसियन ऑलवेज इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। सो इक्वेशंस आप देख लें, सेम इक्वेशन, नो बिग डिफरेंस, ठीक है। कैसे आई, तो यूनिमोडल का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि मैप और एमएमएसई ये यूनिमोडल केस में ये सेम होंगे। सो दिस फर्स्ट फिगर हेयर, इस केस में अगर आप देखें तो एक ही सिंगल पीक है, ठीक है, दैट इज अ सिंगल मोड। इस केस में मीन, मीडियन और मोड, दैट इज मोड इज मोड डिफाइंस योर पीक। मोड आपके पास क्या, यहाँ पे आपके पास तीनों चीजें क्योंकि इक्वल है, मीन मीडियन और मोड, वी आर इंटरेस्टेड इन द मीन एंड मोड। सो दैट मीन्स आपके पास मैप और एमएमएसई, एमएमएसई आपका जो एस्टिमेट है दिस इज अ मीन ऑफ दिस पीडीएफ विच इन दिस केस इज दिस सेंटर पॉइंट डिनोटेड बाय दिस लाइन। और आपके पास जो मोड है, जो पीक है, वो भी यही है, तो इसलिए आपके पास एमएमएसई और मैप इसमें इस केस में एक ही होंगे। वेयरएज अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इस केस में आपके पास मल्टीपल पीक्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल पीक्स के केस में लाजमी नहीं है आपका जो मैप है और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर है वो सेम हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे जो नीचे वाला फिगर है इसमें देख सकते हैं तीन आपके पास आ रहे हैं, आपके पास मल्टी मॉडल आ रही है और तीन आपके पास मोड आ रहे हैं इसके। तो इन दिस केस टू दिस इज अ 2D केस, जब आपके पास ये पीडीएफ है दो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है। सो इन दिस केस टू ये हैव 3 पीक्स। सो अगेन दिस इज मे बी द peak with the highest magnitude, ठीक है, और this the one with the second highest और this the one with the third highest. So actually जब आप डेरिवेट करके इक्वल टू जीरो पुट कर रहे होते हैं चीज को, तो वो करना क्या है, वो आप कर क्या रहे हैं, वो आप बेसिकली इस एरर सरफेस पे घूम रहे हैं, ठीक है। सो अगर इस एरर सरफेस, let me redraw this thing. So let's assume this is your error surface, ठीक है, second order है, so that's why we do it something like this. So आप क्या कर रहे होते हैं जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं एट ईच स्टेप, ठीक है। और वी नो दैट अगर आपके पास एक लाइन में आप एक्चुअली एरर के केस में आप मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये वाला, यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड दिस पॉइंट। सो बड़ा आसान है कि अगर आपके पास मिनिमम पॉइंट ये है, आप डेरिवेटिव कंप्यूट करते जाएं, यहाँ पे इन लोकेशंस पे ये नॉन जीरो आएगा। सेम थिंग गोज फॉर दीज लोकेशंस, अगर आपके पास इटरेटिव प्रोसीजर है
देन आप कंटिन्यूसली कंप्यूट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड फाइनली यू रीच दिस मिनिमा, ठीक है जी, which in this case is the global as well, the only minima, so this is the global minima. बट अगर आपके पास एरर सरफेस लेट से कुछ इस तरह से है, नाउ देयर इज अ लोकल मिनिमा एंड अ ग्लोबल मिनिमा, सो अगर आपका एस्टिमेटर यहाँ पे फंस जाए तो यहाँ पे भी तो आपका डेरिवेटिव जीरो है, अगर यहाँ पे फंस जाता है सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्टिमल एस्टिमेट, ठीक है। सो वेयर एज इन दिस केस इसे जो एस्टिमेटर है उसे यहाँ पे इस जगह पहुंचना चाहिए, और अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन या पोस्टीरियर मैक्सिमाइज करने की या पीक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगेन इट्स द सेम केस। फॉर एग्जांपल इस केस में दो पीक्स आ रही हैं, एक मैक्सिमा ये है और ग्लोबल मैक्सिमा ये है, ये लोकल मैक्सिमा। इन दिस केस टू अगर आपका जो बी प्रोसीजर है वो आपका इस मैक्सिमा पे फंस जाता है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आपका जीरो है, तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आएगा उस चीज़ का। Whereas in this case, in the case of a Gaussian PDF, you have a single maxima, ठीक है। आपकी एरर सरफेस अगर ऐसी है तो you will अगर इस तरह की है you will have a single minima, so this will be the single point where your algorithm is going to converge with proper settings of course, ठीक है। डाइवर्जेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। सो ये था आपका lecture regarding the MMSE approach and MMSE और least square approach, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से एस्टिमेटर्स अनबायस्ड हैं, ठीक है। वी विल गो इनटू द डेफिनेशन, आपको स्टार्ट में मैंने बता दिया था, ठीक है। बायस हम देख रहे होंगे और वेरिएंस देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स और यू कॉल इट जो आपके पास क्रैमर राव लोअर बाउंड, ठीक है। इट्स द सेम थिंग एज द फिशर इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स रादर इनवर्स ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और होती क्या। सो वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। आई होप you understood these this lecture. Inshallah talk to you in the next lecture.